Yansh is not there still. What about others? Yeah, Yanshi, good morning. So today what we have to do, we have to solve the questions related to periodic classification and chemical reaction and equation. तो आपको पहले वही कराएंगे आज, ठीक है? Take out your copies, all of you. तो अभी तक से हमने जितने भी चैप्टर डिस्कस किए, बेसिकली हमने तीन चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, देन एसिड बेस एंड होमोलोगस सीरीज वाला चैप्टर, तो उस कार्बोनेट्स कंपाउंड दैट इट इज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन दैट the screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes, the screen is visible to everyone. Yes. Yes, ma'am. Okay. Starting from this, pentane has a molecular formula. How many covalent bonds it is having? C5H12. How many covalent bonds it is having? 5, 12, 16 or 17? Take it out. 17 covalent bonds. 17. Yes, ma'am. Okay. Can anybody write the structure and show me how many total CH bond and how many carbon-carbon bonds are there? 12 CH. Ma'am, C carbon having 5 bonds. Answer in the chat. Ma'am, it will be 16 total covalent bonds as there are 5 carbons. So for 5 carbon, there will be 4 bonds for carbon-carbon bond, covalent carbon bond 4 bonds and 12 carbon hydrogen bonds. 16 total. Okay. अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे तो टोटल कोवैलेंट बॉन्ड इज 16. अब यहाँ पे आपको C5H12 मिला है, हो सकता है एग्जाम में आपको कोई दूसरा दे दे, पेंटेन दे दे, हेक्सेन दे दे. आपको टोटल कोवैलेंट बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं. अब इसी क्वेश्चन को और थोड़ा मॉडिफाई करना है, तो इसमें अगर जैसे अभी इसी में मैंने अगर आपको दे दिया, I have given you C3H6. Okay. C3H6. I have given you C3H6. Okay. C3H6 you are having. Identify the various types of bond and tell me what types of bonds are there. 7. How many carbon-carbon single bond, how many carbon-carbon multiple bonds are there, and how many carbon-hydrogen bonds are there? CC 2 double bond, CC single bond. 6. Yes, wait. I want the answer to the chat because others are simply sitting mum. They are not replying. Millie, why not today? So much Josh is there in you. Now you are not replying. तो मैंने आपको ओवरऑल बॉन्ड बताने नहीं बोला है, मैंने आपको बोला है टाइप ऑफ बॉन्ड्स को एक्सप्लेन कीजिए. हाउ मेनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड single bond, or how many carbon hydrogen single bonds are there, how many carbon multiple bonds are there, like this. Okay, one carbon multiple bond means which one? Double or triple? Double. Yes, I got the Divyansh answer. One carbon single bond, one good. Carbon double bond, one good. And carbon hydrogen what is 1 and 6, total 7. Okay, correct है? Correct beta. Okay, so this type of questions will be there. Okay. 6 आएगा आपका. Okay, total carbon hydrogen bond 6 है. Okay, so correct. So this type of questions will be there. Simple सा क्वेश्चन था, बन गया MCQ, और इसी से ही आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन गए.
Okay, clear? Now mention two properties of carbon by which it forms multiple bond. Organic compounds. Mention any two properties of carbon. I am telling, mention any two properties of carbon. Mention any two properties of carbon by which it forms various organic compounds. Okay? Mention any two properties of carbon by which it forms various organic compounds. Yes, correct. Yes, correct. Catenation, tetravalency. Yes, Divyansh. What happened to Millie? Why no answers? Ayush, good. Divyansh. Yes, Millie, got it. Got it. Your answer. Good. Okay. Okay. Good. Nitika, correct है बेटा. Akshad, what is this? Polymerization. It's not. Polymerization एक chemical reaction होता है, वो उसकी property नहीं है. वो chemical reaction है, वो chemical property है, वो इसमें नहीं आएगा. Okay? Catenation लिख सकते हो, tetravalency लिख सकते हो, covalency लिख सकते हो. Okay? You can write all these 3 points. Okay? So next question. The correct electron dot structure of water molecule in the following is. अब देखिए स्क्रीन में. Option D. Yes, tell me. Answer to the chat. Correct electron dot structure. Electron dot structure. मतलब डॉट्स जो हो करेक्ट होने चाहिए. ऑप्शन ए तो मतलब Yes, Samya. भाई ऑप्शन ए कभी नहीं होगा. ऑप्शन ए They don't fight. Wait. Option Answer to the chat. Answer to the chat. Option Yes, Ayush, good. Maitri also good. Correct. Option C is the correct one. Why? Because आपने नोटिस नहीं किया. कार्बन ऑक्सीजन का सब टोटल ऑक्सीजन के आसपास टोटल 8 डॉट्स होने चाहिए, क्योंकि 6 उसके खुद के रहेंगे और 2 अलग-अलग हाइड्रोजन के रहेंगे, यानी टोटल 8 डॉट्स होने चाहिए, है ना? So that is there in this C1. Correct? Okay. So this is the next. Okay, now next question number 25. Which of the following does not belong to same homologous series? Which of the following does not belong to same homologous series? ऑप्शन डी C4H8 Yes, ma'am. Yes, ma'am. Option D, C4H8. C4H8 is not belonging to the same homologous Yes, series. yes, Yes, are you belongs sure? to Yes, alkene. ma'am. Are you sure? It Yes, is of alkene. and rest we are of alkene. Yes, sir. Yes, Divyansh, correct है. Divyansh, good. I like it. You are continuously replying in every classes. Maitri, good. Millie, Millie कहाँ गई? Millie, correct है बेटा. No. You are this answer is no. This one is for old answer. No. और Millie, yeah, correct है. Okay, so this is the what MCQs. अब और देखते हैं इसमें MCQ का. इसमें से सोप वाला पार्ट वगैरह छोड़ देना. मैं बार बोल रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप यू डोंट हैव टू गो टू द डेप्थ. Only the basic which is related to homologous series, that much you have to do. Nothing else you have to do extra. Okay. Okay, electron dot structure of carbon tetrachloride. Electron dot structure of carbon tetrachloride. I want to see your answers in video. Electron dot structure of carbon tetrachloride. Electron dot structure of carbon tetrachloride. Is it CCl4? Yes, correct. CCl4. बंद कर. बस गोला बनाना बच्चा. ठीक है. मैम उसको कोवेलेंट Yes. कोवेलेंट हो ये उस चीज में दिखाएंगे ना. हाँ,
आपका जो जब भी अगर आप सर्कल बनाओगे तो सर्कल के अंदर सिर्फ शेड पेयर आने चाहिए, दूसरे नहीं आएंगे. ओके, इफ यू मेक द सर्कल inside the circle only the shared pair of electrons should be there, nothing else. Inside the circle shared pair of electrons should be there, nothing else should be there. I am clear. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन X से डिनोट करेंगे. ऐसे वेट, कार्बन का डॉट. ये कार्बन है, ये इसके सपोज मैं एक ही का बना रही हूँ, पूरा नहीं बना रही हूँ बिकॉज यहाँ पे जैसे ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो इसमें कितने आएंगे, क्लोरीन 4. तो अभी मैं सिर्फ एक क्लोरीन के साथ दिखा रही हूँ आपको, बाकी तीनों आप अपने आप ड्रॉ कर लीजिएगा. ओके, सो दिस इज क्लोरीन. मैम बाकी 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है ना? जरूरी है, मैं आपको एक का ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आपको पूरे का करना है. ठीक है, सिर्फ जो शेड है वही सर्कल के अंदर आएगा, बाकी नहीं आएगा. यानी कार्बन के पास वाले जो दो डॉट है उसको आप सर्कल में ले जाओ. ओके, सेम वे यू विल ड्रॉ फॉर द अदर 3 क्लोरीन एटम्स आल्सो. ओके, यानी यहाँ पे भी सेम ऐसे ही एक बॉन्ड आएगा कार्बन और क्लोरीन का, जिसमें एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रहेगा. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Now can I see your answers to the chat? So not chat, sorry, video. Can I get? Yes, Millie is trying to show. Millie, are you showing me or not? Yes, Millie, आपका पूरा yes, wait. One second. Yes, Millie, correct है, good. Correct है बेटा. What about others? So what about others? कोई क्यों नहीं दिखा रहा मुझे? Okay, so I will not waste too much time again further because I have to move to the next questions also. तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना आपको. ये अभी मैंने होमोलोगस सीरीज वाला एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है. लेट्स मूव फर्दर टू द होमोलोगस सीरीज क्वेश्चंस. ओके, तो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन हो गए विच इज नॉट रिलेटेड टू होमोलोगस सीरीज. Ma'am, please upload this in WhatsApp group. Which one? This material. This material I have already uploaded in the online class 10th group what you were having now there. Yes, ma'am. अब पुराना है, चलो ठीक है, फिर से अपलोड कर देंगे, कोई बात नहीं. ओके, तो अभी मैं आपको अपना जस्ट आई एम नॉट एबल टू सी हियर एनी क्वेश्चंस दैट एट प्रेजेंट. ओके, तो यहाँ पे आप Ma'am, तो in yesterday's paper there was give reasons, na? yes, In that give reasons question, I didn't understood the second and third part. what question was there? 2 minutes, ma'am. Wait one, I am having the question paper. Which question number you are telling? That give reason of chemistry, I think it was of 5 marks. 34th question. Yes, इसमें क्या हो गया, कौन सा वाला? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू सॉलिड सोडियम कार्बोनेट. Second or third part, हाँ. एक SO2 with sulfur. SO2 is passed through lime water. Yes, Lime तो water, हाँ. कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा, CaSO3 बन जाएगा, कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा. जैसे आप क्या बोलते हैं CO2 गैस और लाइम वाटर का रिएक्शन कराते हो, तो सेम वे उसी तरीके से आप कैल्शियम, इसमें क्या बनेगा, SO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम सल्फाइड. SO3. ओके, प्लस H2O. बस फॉर्मूला अलग हो जाएगा, CaSO3 हो सल्फ्यूरिक जाएगा. एसिड वाले में, कौन से वाले में? सल्फ्यूरिक एसिड. Sulfuric acid is dilute sulfuric acid is added to solid sodium carbonate, तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा. सोडियम, यस, एक मिनट. सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को अगर आप सोडियम कार्बोनेट में डालोगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, H2CO3 बाहर आ जाएगा. ठीक है, ठीक है मैम. क्या हो गया था ना मैम कि जो ये पेपर है ना आपने जो भेजा उसमें ना कुछ जो लेटर्स थे ना वो आगे पीछे हो गए थे. वो सामने एक ही में हुआ 34 क्वेश्चन में, वो थोड़ा प्रिंट आउट ये ऊपर नीचे. इसीलिए मैम मेरे को थोड़ा डाउट हुआ उस क्वेश्चन में. ओके,
H2SO4 plus yes Na2CO3 yes it will give Na2SO4 sorry Na2SO4 sorry Na का चार्ज तो होता है बाकी से जैसे मेटल कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट सी नहीं लिसन आपको ये देखो ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट वाला जो क्वेश्चन था वो किसका पार्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स तो जरूरी नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट ही दे ओके जरूरी नहीं है आपको इंपॉर्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट है तो सिर्फ उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मेटल कार्बोनेट पे सोडियम कार्बोनेट ले लिया ठीक है और ये जो है CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर तो CO2 गैस की जगह आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी ले सकते हो उसमें प्रोडक्ट बस उतना ही बदलेगा ओके कि अगर कैल्शियम अगर लोगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हो तो आपका कैल्शियम सल्फाइड बनेगा ओके रेस्ट ऑल एनी अदर प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर पेपर आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम एनी अदर प्रॉब्लम दिव्यांश Yeah, Divyansh, I'm talking to you. No, ma'am. No, ma'am. No problem. So the next question you take out a homologous series is starting with the. Write the second and third. It is not in this particular screen. I am giving you. Write the formula of the second and the third member of a series. Second and third member of a series. Whose fifth member formula is okay C5H10 alkyne C2H4, C3H6, C3H6 यानी अल्काइन हो गया आपका एल्काइन अगर एल्काइन C5H10 अगर मैंने दे दिया तो ये कौन से फॉर्मेट में है अल्कीन फॉर्मेट में है ना CN तो यानी सेकंड C2H4 सेकंड वन ये कौन C1 ले सकते C1 प्रोपीन C4H8 एक मिनट इथीन प्रोपीन यस एक सेकंड हाँ गुड आपको मैंने सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर स्पेसिफाई कर दिया था ओके तो सेकंड मेंबर आ जाएगा अगर सेकंड मेंबर की बात की जाए तो फर्स्ट मेंबर तो ये इथीन होगा सेकंड मेंबर हो जाएगा प्रोपीन और थर्ड मेंबर हो जाएगा ब्यूटीन तो ये ओके मैंने आपसे क्वेश्चन ओके क्लियर है मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर एक मेंबर है किसी होमोलोगस सीरीज का जिसका फॉर्मूला क्या है C5H10 उसका फॉर्मूला है तो अगर मुझे उसके सेकंड और थर्ड मेंबर उसी सीरीज के सेकंड और थर्ड मेंबर का अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो क्या होगा तो ये हो जाएगा कि मैंने पहले देखना क्या है कि मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया C5H10 कौन से फॉर्मेट में है CnH2n फॉर्मेट में यानी हम अल्कीन सीरीज की बात कर रहे हैं और अल्कीन सीरीज की शुरुआत होती है इथीन से अल्कीन सीरीज की शुरुआत होती है इथीन से यानी पहला मेंबर इथीन हुआ दूसरा मेंबर प्रोपीन तीसरा मेंबर ब्यूटीन यानी आपको प्रोपीन और ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाना था ओके चलो इसी क्वेश्चन को अगर मुझे 3 मार्क का करना है तो मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज एंड राइट द जनरल फॉर्मूला आल्सो CnH2n ओके CnH2n ओके तो आपको 2 मेंबर्स का आपको तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ सकता है दूसरा आपने उसका ग्रुप आइडेंटिफाई किया मतलब उसका जनरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया उसका नेमिंग कर दिया है ना कि वो कौन सा अल्कीन है कि अल्केन है कि अल्काइन तो इस तरीके से ये छोटा सा क्वेश्चन ही आपका 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में एनलार्ज करके आ जाएगा ओके क्लियर सो दिस इज द वे हाउ होमोलोगस सीरीज इज as in this particular chapter so don't leave homologous series in any cost from this chapter okay so let's move to the next chapter that is periodic classification जिसका अभी तक से एक क्वेश्चन नहीं अभी करवाया है ओके सैंपल पेपर में बहुत बार हो गया बट ओके लेट्स सी
यस बेटा यार प्रोपीन का C3H6 yes let me take out the unsolved questions then we will do okay yeah ब्लॉक वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? yes ब्लॉक वाइज जैसे एसपीडीएफ ब्लॉक वाइज ब्लॉक वाइज नहीं आएगा ब्लॉक वाइज अभी है नहीं ना? हाँ ये अल्कली अल्कलाइन हैलोजन नोबल गैस ये टर्मिनोलॉजीज यूज हो सकती है तो इसमें मैं आपको नहीं बोलूंगी कि नहीं आएगा ओके ब्लॉक वाइज स्टडी 11th क्लास से चालू होती है नॉट फ्रॉम 10th क्लास ओके नेक्स्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स ऑन इट्स फर्स्ट एटॉमिक नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन number of proton Proton is equal to atomic number. okay Option D. yes next an element has a configuration 281 it belongs to which थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप थर्ड पीरियड First group. ऑप्शन 1 wait why I'm not getting the answers to the chat when I will say and then only you will get yes Millie good Sodium. third period yes Millie very good Divyansh first group yes period which period 2A Option A. yes no Millie Maitri no Prathan yes Vyanshi no 2 का अच्छा 2 का ये बोल रही है ओके ओके करेक्ट है नितिका करेक्ट है सो यहाँ पे आपका अगर पीरियड देखना रहता है तो हम देखते हैं कितने शेल्स है उसमें कितने शेल है यहाँ पे 3 शेल है 281 यानी 3 शेल है यानी 3 पीरियड है थर्ड पीरियड हो गया और कितना कौन सा ग्रुप है बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा अगर बैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप भी 1 या 2 होगा तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है इसलिए ग्रुप नंबर 1 करेक्ट now next group question number 3 the number of electrons in the valence shell is equal to its option number of electrons in the valence shell is equal to its the number of electrons in the valence shell is equal to its Ma'am, yes Ma'am B. number of electrons in the valence shell is equal to its Number third. अभी तो हुआ है ग्रुप नंबर ओके ग्रुप नंबर के इक्वल आएगा ओके पीरियड नंबर तो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है ओके द नॉन मेटालिक एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड अदर देन सल्फर एंड क्लोरीन इज Phosphorus. Ma'am, option D. यस यार फोर्थ ऑप्शन ना बाकी सब सो गए क्या नो आंसर्स व्हाट अबाउट अदर्स अगर ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2,6 ओके फ्लोरीन का हो जाता है 2,7 नाइट्रोजन का हो जाता है 2,5 ओके तो ये सारे के सारे सेकंड पीरियड वाले हैं बस यही फास्फोरस बच्चा जिसका 15 है यानी कि 285 यानी थर्ड पीरियड का मेंबर है जो कि सल्फर और क्लोरीन है ओके सो द फास्फोरस इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड द बैलेंस शेल इज डैश Completely filled. Completed. Why you are not getting the answer? मैं क्या पर्सनली आपसे एक एक करके पूछूंगी तब आप मुझे जवाब देंगे Ma'am 4. Yes, Millie, good. प्रियांशी मैत्री करेक्ट है क्योंकि हमारा जो पीरियड है उसके एंड में नोबल गैस मिलता है नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द फैमिली ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड एज हेलोजन Ma'am, option 3. ओके करेक्ट है यस गुड नेक्स्ट which of the following factors do not affect the metallic character which of the following factor do not affect the metallic character of an element 2. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Ma'am, option 3rd. ऑप्शन सेकंड why not others No, ma'am, option 2nd. कोई एक चीज बताइए Ma'am,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Option second. Option B. सेकेंड और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन बता रही थी तो मैंने क्या बोला था, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर किसी एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए। कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? नॉन मेटल्स बनाते हैं, मेटल्स तो नहीं बनाते। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टर्म है वो बेसिकली नॉन मेटल्स के लिए यूज होता है, नॉन मेटल्स के लिए नॉट। और ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल आप बात बोल रहे हो, एक आयनाइजेशन सुन के दिमाग में क्या आ रहा है? आयंस का फॉर्मेशन। और आयंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है कि नहीं? यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज रिलेटेड, कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कम या लूज करने की टेंडेंसी भी कम ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो एटॉमिक साइज इफेक्ट करता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इफेक्ट करता है, एटॉमिक रेडियस भी इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करता। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, द फैमिली ऑफ एलिमेंट्स टू विच पोटेशियम बिलोंग्स इज Alkali metals. Alkali metal. अल्कलाइन नहीं आएगा बेटा, अल्कली आएगा। अल्कलाइन ग्रुप 2 को बोलते हैं। ग्रुप 2 में आ गया आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके, स्ट्रोंशियम, ओके, सीजियम। मैम फर्स्ट ग्रुप में क्या वो है? यस रेडियम। यस बेटा, क्या हुआ? देखो इसमें आता है, सेकंड ग्रुप में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, Mg, Cr, Ca. मांगे कार स्कूटर, बाबराजी, Ba, Beta. Rz, ओके आरे रेडियम ओके। ये हो गया सेकंड ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप हो गया, I, अलीना की रब से फरियाद। वेरी गुड। K, एच आएगा ना मैम? Rb, पहले एच नहीं आएगा? हाइड्रोजन वो ग्रुप 1 का है, लेकिन उसको हम मेटल्स की बात करें, अल्कली मेटल्स की बात करें, वो अल्मटेल नहीं है। मेटल ओके, नहीं? वो ग्रुप 1 का मेंबर है लेकिन अल्कली मेटल नहीं है, याद रखना, मैं फिर से बोल रही हूँ। रुबिडियम, ओके, नॉन मेटल्स में लेते हैं ना मैम? आरबी, रूबिडियम, एसी, Cesium, हाँ सी एस Okay. क्लियर? Strontium है ना? यस मैम। So these are the list of the group 1 and group 2 elements. Okay, ये अल्कली मेटल्स हैं और ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ओके, Yes, ma'am. क्लियर? नेक्स्ट, द मॉडर्न मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, It is given by मोस्टली नॉट बाय, अच्छा एक मिनट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला है, पीरियोडिक लॉ नहीं बोला है। बोर आएगा। देखो, अगर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया है तो मोजले आता। मोजले को लॉ को यूज करके बोर ने टेबल बनाया है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने वाला बेसिकली कौन है? बोर है। ठीक है, प्रिंसिपल मोस्ले ने दिया था। ओके, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 1 to 17, ग्रुप 1 to 17 are called as Transition. 1 to 17 transition elements. Normal element. ट्रांजिशन नहीं है मैम, 1 to 17 ट्रांजिशन। 1 to 17 ये गलत लिख दी है। हाँ 1 to Normal 17 element. मैम 3 से में आएगा, it will be 3 to 12 हाँ 12 तक। 3 to 12 आएगा, ये आएगा यहाँ पे 3 to 12 आएगा। ओके, transition element आएगा सर। हाँ इट विल बी 3 to 12। ये क्वेश्चन जो पूछा Transition ये क्वेश्चन से पूरा गलत है। इट विल बी 3 to 12 एंड द ऑप्शन विल बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, इनर ट्रांजिशन क्या होता है? इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक आ जाते हैं, जो ट्रांजिशन के ही एक हिस्सा है, जो नीचे रखा रहता है 28 एलिमेंट रहते हैं ना वो। 59 से 81। ओके, मैम, उसमें 18 एलिमेंट्स रहते हैं ना इनर ट्रांजिशन में? ठीक है। लिक्विड नॉन मेटल, मरकुरी, Mercury. सॉरी भाई, नॉन मेटल है भाई, सॉरी Bromine. ब्रोमाइन। ब्रोमीन, देखो फिर आंसर करो। लिथियम, यस, द फर्स्ट अल्कली मेटल इज लिथियम,
लिथियम, बहुत लोग हाइड्रोजन बोल देंगे, मेरे को पता है। द पर्पल कलर सॉलिड हाइड्रोजन इज पर्पल कलर सॉलिड हाइड्रोजन। Iodine, iodine, आयोडीन iodine. वाइट कलर आयोडीन होगा। वहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा तुम लोग Estine, दोनों। वहाँ दिखता नहीं, नजर नहीं है। estrine, एस्ट्राइन होगा मैम estrine. Okay. Yes. Lanthanides and actinides are also called as inner transition elements. Okay. मैम Clear? एस्ट्राइन आंसर इसका किसका? 13 का नहीं, आयोडीन। Iodine बोला तो बोलते हैं green, white होता है. Okay. The family of elements whose to which calcium belongs. अल्कलाइन Alkaline earth metal, alkaline earth metal. Yes. Okay. The least reactive element in group 17. The least reactive element. आयोडीन Yes. Chlorine, क्या? नहीं बेटा, नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, कम हो जाती है ना, तो रिएक्ट, तो यहाँ पे आयोडीन है। यस नितिका, योर आंसर इज करेक्ट बेटा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। 3. 7. थर्ड पीरियड कौन है राइट के ऊपर? 3, पीरियड नंबर ऑफ शेल्स के इक्वल रहते हैं। करेक्ट मिली, गुड। ओके, मैम 17th का किए नहीं अपन। 17th क्वेश्चन नहीं किए मैम। अच्छा नहीं किए क्या? वैलेंसी ऑफ क्लोरीन विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? वाह, वैलेंसी पूछ रहा है। वैलेंसी वन वैलेंसी पूछ रहा है, वैलेंसी 1 हो जाएगी। ओके, होगा ना? हाँ। yes. The 4 elements along a period have atomic number 11, 13, 16 and 17. The most metallic among these. 11, Most metallic. sodium, 11, 11 sodium. Here other sciences also, then I will reply. Let me. 11 Okay, correct. 11. Okay, क्योंकि इसके वैल्यू, इसके कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281 और दूसरा वाला भी तो 283। उसका क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? उसको क्यों नहीं रखते? नीचे जाते जाते तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ते जाते. बाद में नहीं, they are moving along the period. अच्छा. 11 और 13. Yes, 11 और 13 मतलब आप along the period जा रहे हो और along the period metallic character decreases. Okay? Yes. Now 20th one, 20th question. 20th question. B, option 2 B, chlorine. Okay, I'm waiting for the others also to reply. 12, 17, 18 और 9. Sorry, ionization आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ पे करनी पड़ेगी, यानी कौन सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा 17 फ्लोरीन. ऐसे 9 होगा पर थर्ड अरे भाई क्लोरीन, मैम अगर फ्लोरीन होता ना तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन नहीं है क्या? होता है, दिख नहीं रहा आप लोगों को? क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन नहीं दिख रहा है नंबर थर्ड पे, हाँ, इसीलिए नहीं चूज ओके, तो आंसर बी होगा। नहीं है क्लोरीन का तो। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया अमंग दिस एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड वाले कौन है? 12, हाँ, 17, ओके, और 18। थर्ड पीरियड नहीं देता ना तो वो फ्लोरीन ही होता। करेक्ट, ओके, यही बचे, ये 4 हैं आपके थर्ड पीरियड में। और इस थर्ड पीरियड में अगर देखा जाए तो थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, मैं फिर से बता रही हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी आपको उसमें सप्लाई करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल है उतनी ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है, मेटल्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, क्योंकि मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। तो बी जो है वो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है इन थर्ड पीरियड। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी और एनर्जी, एंथैल्पी और एनर्जी टर्म हम लोग जनरली मतलब सेम टाइप यूज करते हैं। एंथैल्पी मतलब द हीट, एंथैल्पी का मतलब होता है हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस।
जैसे कि इनिशियल स्टेट में H1 हीट है और फाइनल स्टेट में H2 है, तो दोनों स्टेट का जो हीट डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी. Okay, the change in the heat is called as enthalpy change, and that is used in the measurement of the ionization enthalpy or electron gain enthalpy. ठीक है, एंथैल्पी मतलब बेसिकली अगर छोटा सा डेफिनेशन बोलूं तो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी. ठीक है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम का जो भी हीट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी. और अगर एंथैल्पी चेंज वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब द चेंज इन द हीट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट. ओके, Yes, ma'am. next the factors affecting the ionization potential of element is. Electronegativity. Yes, मैम, और मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है मैम, क्योंकि जो फैक्टर नहीं इफेक्ट करता वो न्यूट्रॉन है, बाकी तीनों फैक्टर इफेक्ट करते हैं. that affects the ionization potential. यहाँ पे ये इसको मैं चाहे तो मल्टीपल चॉइस A B C करके मैं डाल सकती हूँ. हाँ सही बात है. क्वेश्चन मैं बोल रहा था ABC क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन इफेक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन पोटेंशियल को करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी वो भी इफेक्ट करेगा, एटॉमिक साइज भी इफेक्ट करेगा. ओके, तो अगर यहाँ पे नॉट इफेक्टिंग होता तो न्यूट्रॉन होता, और अगर मल्टीपल चॉइस ऐसे मैंने A B C फॉर विच पेयर आर द करेक्ट, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा आता तो 1 2 3 जो है वो करेक्ट पेयर है, ये तीनों इफेक्ट करेंगे. ओके, नाउ सेज 20 सेकंड. क्लोरीन क्लोरीन Chlorine. Chlorine. Correct. The element which has zero electron affinity in the third period. Argon. आर्गन आर्गन Yes. Noble gas. Okay, Millie, correct है बेटा. The statement that is not true about electron affinity is. It causes energy to be formation of an ion. It involves formation of an anion. देखो, एनर्जी इज रिलीज सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो इलेक्ट्रॉन को खींच के लाना है तो उसको अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी, तो इट कॉजेस एनर्जी टू बी रिलीज. इट इज करेक्ट. तो एनर्जी इज टू बी एब्सॉर्ब्ड, नो, ये नहीं है करेक्ट, क्योंकि हमको अगर किसी चीज को खींचना है तो हम एनर्जी एक्सपेंड करते हैं, एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करते. ओके, तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, सॉरी रॉन्ग हो गया. बाकी दोनों सही हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर करती है और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज लगता है यानी एनायन बनता है, तो ये भी सही है. ठीक है, डाउन अ ग्रुप द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Decreases. Increases. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घटती है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस. ओके, Nitrogen. मैम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैम यस लिसन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो अलग अलग वर्ड हैं. ठीक है, दोनों को मीनिंग एक जैसा लगता है लेकिन एक है नहीं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, जो हर नॉन मेटल में होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है ना. लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको बताता है कि स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल कौन है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या बोला था कि इन अ कोवेलेंट बॉन्ड द टेंडेंसी ऑफ अ